So here's what I see and what I think. Fashion brands have turned this fashion space into social experiments. And ये मेरा observation रहा है कि many brands like Balenciaga, Bottega Veneta, Prada, every other brand is trying social experiments just to go viral, or is it something that is creatively driving them? We'll discuss it all in today's video where we talk about fashion from around the world. Hello, my name is Rupan Kumar and I welcome you to Renaissance Solocast. A lot of fashion brands have showcased their spring summer 2026 collection in दो फैशन वीक्स में जो अभी रिसेंटली साइमल्टेनियसली चल रहे थे, मिलान फैशन वीक और पेरिस फैशन वीक. अब अगर आप चाहते हो कि मैं इन फैशन वीक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करूँ कि ये फैशन वीक्स होते कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या होते हैं एंड एवरीथिंग, तो मैं इसके बारे में एक फुल साइज़ वीडियो बना सकता हूँ. अगर आप चाहो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और यू कैन टेल मी थ्रू DM और एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वाली चीज़. ठीक है. अब अगर मैं छोटे स्केल में समझाऊँ तो पेरिस फैशन वीक में वो सारे ब्रांड्स आते हैं जो पेरिस से ओरिजिनेट होते हैं, या कुछ स्पेशल मेंशंस जैसे रेकोवेंस हो गया, योजी यामामोटो हो गए. दीज आर द ब्रांड्स दैट कम फ्रॉम आउटसाइड पेरिस बट शोकेस देयर फैशन शोज इन पेरिस फैशन वीक. ये ब्रांड्स थोड़े नोटेबल होते हैं एंड दे आर लाइक वेरी बिग ब्रांड्स, तो वो अपने कनेक्शंस के थ्रू शोकेस कर लेते हैं अपना कलेक्शन. ठीक है. अब मिलान फैशन वीक जैसे है वो इटली में होता है. इटालियन ब्रांड्स जितने होते हैं वर्साचे, प्राडा वगैरह सारे ये सारे शोकेस करते हैं. एंड अगेन थोड़े नोटेबल ब्रांड्स जो इन फैशन वीक्स में अपना शो दिखाना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. नाउ एज यू हैव अंडरस्टूड कि ये फैशन वीक्स ऑपरेट कैसे होते हैं एंड इनमें कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, लेट मी टेल यू अबाउट माई 4 फेवरेट फैशन डिजाइनर्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स हु हैव शोकेस्ड देयर स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन इन फैशन वीक्स में मिलान और पेरिस पर्टिकुलरली. तो द वेरी फर्स्ट वन बीइंग जोनाथन एंडरसन, जिन्होंने डियोर के लिए अपना कलेक्शन रिलीज़ करा, विमेंस वेयर ऑब्वियसली. अब आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड अबाउट द शो, वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द शो, एंड आई न्यू दैट जोनाथन वुड ऑब्वियसली डिलीवर. बट द थिंग वॉज कि इस शो में आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू डू अ लॉट मोर एक्सपेरिमेंटेशन, बट I could very much understand कि he is also trying to go very commercially. उसने ये करा है कि द जून में जो उसने मेंस वेयर शो लाया था, it was an extension to that show for the women's wear line, and he is taking inspiration from obviously the previous creative directors like Maria Grazia हो गई and John Galliano. Apart from that, the OG Christian Dior obviously, and the show was really good, I'm telling you that. But I was expecting him to do a lot more experimentation. It's good. The show was great. Talking about greatness, so Versace, yes, Versace. Dario Vitali, the brand new creative director at Versace, has showcased his very first collection for the spring summer 2026 collection after Donatella Versace stepped down as the creative director of Versace, जो उन्होंने इससे पहले collection release करा था. And I wasn't expecting this much of a color and everything. He used to do colors obviously at Miu Miu. He was the previous creative director at Miu Miu, by the way, and Miu Miu was a commercially very hit brand under Vitale. I was expecting कि वो थोड़ा बहुत experimentation करेंगे, but the reference that he took from the previous Versace के collections and everything from the jewelry, from the colors that he played with, from the silhouettes that he played with, was something to look upon. Like the stripes and everything was something very good, and I really like the collection. So you can have a look into the collection. I'll link that down in the description below. Of all the shows that I'm mentioning, I'll list them down in the description, so you can go and have a look into it. The next fashion brand is Prada. So Prada did a great collection. उन्होंने अपना 2026 spring summer ready to wear collection launch करा है recently with a runway, full size runway. ठीक है. Women, I request you to take notes here क्योंकि आपको फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स के बारे में समझ में आएगा. तो वैसे प्राडा के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम उनके कोलापुरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात ना करें तो ये बहुत ही अजीब सी बात होगी. तो प्राडा का ऑब्वियसली दे आर पॉपुलर फॉर देयर रीसेंट कोलापुरी वाला जो चप्पल का कंट्रोवर्सी था. उन्होंने अपनी एक टीम भेजी कोल्हापुर में एंड दे रिकग्नाइज देम, बट प्रीवियसली दे डिड कॉपी द कोल्हापुरी चप्पल वाला सीन. इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी टू लुक अपॉन. बहुत ही मज़ा आया वो कॉन्ट्रोवर्सी में. बट या अभी जो उन्होंने कलेक्शन लॉन्च करा है उसमें ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है. ठीक है. देव लॉन्च उसमें जो अपना रनवे में उन्होंने जितने भी मॉडल्स थे उन मॉडल्स को एक फुल साइज ग्लव्स पहनाए थे, एंड ग्लव्स कुड बी समथिंग विच कुड बी ट्रेंडिंग द नेक्स्ट ईयर. इट इज़ ट्रेंडिंग बहुत टाइम से,
बट हाँ नेक्स्ट ईयर इट कुड बी मोर ट्रेंडिंग. एंड अभी के टाइम पे अगर जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो यू कैन ट्राई लेदर ग्लव्स, बहुत ही अच्छे लगते हैं विद अ लॉट ऑफ क्लोथ्स एंड अ लॉट ऑफ मल्टीपल डिफरेंट सिलुएट्स. तो आप ट्राई कर सकते हो ऑन योर ओन. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे और शर्ट्स वगैरह के साथ एंड ब्रालेट्स वगैरह के साथ दे डिड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. सो इट वॉज अ गुड कलेक्शन. यू कैन लुक इनटू इट एज वेल. इसके बाद जो ब्रांड के बारे में हमें बात करना है इट्स YSL. द फुल फॉर्म ऑफ YSL इज यीव्स सेंट लॉरेंट. ये लाइक थोड़ा ऐसा फ्रेंच में होता है. मैं इंडियन हूँ तो मैं ऐसा फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाऊंगा उतने परफेक्टली, बट या दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड. आपने YSL के वो फ्लैट्स एंड YSL के हील्स देखे होंगे एंड यू माइट नो अबाउट द ब्रांड. तो उन्होंने भी अपना स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन लॉन्च करा है इन पैरिस फैशन वीक. द कलेक्शन is about taking notes. So women's take notes. Leather is something which is very popular अभी के टाइम पे. everything leather, like leather jackets हो गए, leather pants हो गए, leather crown हो गया. okay, leather crown, right? इसके बारे में we'll talk थोड़े टाइम में कि what did Bottega do about a leather crown. प्राइस ऐसी रखी है उन्होंने. we'll talk about it. okay, तो leather का कुछ भी is very much trending. अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमलिस्ट ज्वेलरी, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमलिस्ट. उन्होंने शायद कुछ ईयरिंग्स वगैरह लॉन्च करे एंड दैट इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमलिस्ट. ज्वेलरीज आर समथिंग दैट एलिवेट्स योर आउटफिट, सो ज्वेलरी इज समथिंग टू लुक अपॉन. दोज आर द कलेक्शंस विच आई लाइक द मोस्ट फ्रॉम दीज फैशन वीक्स. अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे न्यूज़ की तरफ. ठीक है. इट्स अबाउट Bottega. Bottega इज़ अ ब्रांड विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स बैग और स्लीपर्स. अब इन्होंने क्या करा है इज़ समथिंग टू वेरी मच टॉक अबाउट. ठीक है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. पूरे एंड तक देखना, मज़ा आएगा आपको. ठीक है. आप मुझे ये बताओ कि आप एक लेदर क्राउन, यस क्राउन, जो एक मोनार्क या किंग पहनता था इन द पास्ट, उसके लिए कितना पैसा दोगे. एंड इट्स मेड आउट ऑफ लेदर. ठीक है. कौन सी क्वालिटी का लेदर है, क्या है, डजेंट मैटर अभी के लिए. जस्ट टेल मी. 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कुछ अगर आपको समझ में आ रहा है तो 15,000 रुपये. I'm talking about Indian audience specifically. Also from the western part of the world, how much could you pay for a leather crown? Which you might not even wear. You might give it to a kid or to someone very smaller to you. क्योंकि वो किसी, अब स्टाइल कैसे करोगे उसको. ठीक है. So Bottega has launched a leather crown which is for a freaking price point of $3,000. अगर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहो तो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा. ठीक है. 2.5 लाख रुपए, इतने में आप क्या नहीं ले सकते. बट 2.5 लाख रुपए का एक लेदर क्राउन. अब आप मुझे बताओ कि ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है या नहीं है, या ये क्या क्रिएटिवली क्या करना चाहते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड द ब्रांड्स डूइंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. इससे पहले Balenciaga ने भी ऐसे बहुत सोशल एक्सपेरिमेंट्स करे. उन्होंने जले हुए जूते, फटे हुए कपड़े, लेजिट मतलब एक चिप्स का बैग, गार्बेज बैग, क्या क्या नहीं बेचा. ठीक है. फॉर अ इनसेन प्राइस. आप मुझे बताओ, इज इट अ सोशल एक्सपेरिमेंट या कुछ चाहते हैं ये. बिकॉज व्हाट आई थिंक इज ब्रांड्स जब भी ऐसा कुछ लॉन्च करते हैं, ठीक है, व्हाट दे वांट इज कि लोगों का अटेंशन इन पे आए एंड इनकी PR बहुत स्ट्रांग हो जाती है जैसे ये वो ऐसा कुछ लॉन्च करते हैं. अब हर कोई, जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ इसके बारे में, पूरी दुनिया इसके बारे में बात करेगी एंड द ब्रांड गेट्स रिकग्निशन और वही उनको चाहिए. सो टेल मी कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट है या नहीं है. मतलब मुझे जानना है यार, आपके व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में. नाउ द लास्ट एंड द फाइनल न्यूज़ फ्रॉम द इंटरनेशनल सेगमेंट कम्स फ्रॉम द मैन, द मिथ, द लेजेंड, Virgil Abloh. He was the creative director of Louis Vuitton for a long time before passing away at the age of 41, and he lost his life to cancer in the year 2021. Or it was sad for the fashion industry because he was a creative genius. He had partnered up with a lot of brand. मतलब जिन brands का आप नाम सोचोगे या नहीं भी सोचोगे उनके साथ भी probably he would have partnered up. ठीक है. What did Paris do to honor him this year on his birthday was also something very interesting and very good for the Virgil Abloh fan boys and girls out there. ठीक है. So Virgil Abloh Archives and Nike set up an exhibition in Paris itself to honor Virgil Abloh. उनके 20,000 items which he made throughout his career of 41 years was brought together, or it was placed in a museum of sorts, and everyone was allowed to go and have a look into the exhibition, and it was something very honorable to Virgil Abloh. And it was something very emotional for me because I am someone who is very much inspired by
Virgil Abloh and the group that he had, Kanye West, Pharrell Williams, Don C, and everyone who was from that part of the group who had all the struggles but still made it in life, right? So it was something very emotional for me. It is sad to see Virgil go. He was a creative genius, man. Like, actual genius. अब सैड रह के तो कुछ होना नहीं है. So let's move on to the next segment of the video.